Hi, I've added Ritwik. Hello, Finally, sorry, there was no finally. signal. So sorry, Okay, how are you? I am very, very good. 1 second, I'll have to quickly. Oh, thank God. Can you Yeah, see me properly? yes, yes, very cool. Okay. Hi, so Ritik, we are trying to add Survi. Just I welcome know. I and was, give us a I minute, was, please. I was following you guys on the live, but then I don't know. I couldn't. हाँ, I आपने was not बोला able to hi, join. मैं यहाँ पर हूँ. You said hi, I'm here, and then also there's some technical issue happening. Let me add That's okay. Survi quickly. Okay, we'll wait for Survi to join. Let's say hi to everyone. Survi दी, हाँ मैं भी सुरभि दीदी का ही वेट कर रहा हूँ दोस्त. Handsome man, thank you पहाड़ी girl, thank you guys. Survi Jyoti now says I am here. पहले I was there, now Survi was there, so we Not have to help Survi. her join in. Hi, Ah, finally. Hello, Survi. Hi. Okay. कैसी है? So we मैं have ठीक हूँ Survi. कैसा? मैं बहुत बढ़िया मेरी बच्ची. नीचे ढोल चल रहा है गणपति. आई नो ढोल के मुझे आवाजें सुन रही है ढोल ताशे आज गणपति बप्पा जा रहे हैं. ये वाला यहाँ पे पास में तो वो है ना विसर्जन है, हाँ. तो मतलब सुबह से ढोल चल रहे हैं. बहुत भीड़ है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है. अभी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, भर जाएगा पूरा. शाम रात के टाइम ज्यादा हो जाता है ना. और सही है. Okay. जाके नाच नीचे. So हमारे यहाँ भी आज विसर्जन है. हमारे यहाँ गणपति जी आए हुए थे. तो आप कहाँ हो मुझे पल्लवी? Are you in I'm in Delhi? Delhi right now. I'm in Delhi right now. Yes, yes. So the 500 plants, that I think it'll make sense now. Wow, ये आप दोनों किसके पीछे ढोल बज रहे हैं? धनिये के पीछे. सॉरी बट ये साउंड का मैं कुछ कर ही नहीं सकता. ये तो पीछे चल ही रहा है और चलता रहेगा. नहीं चलेगा हमें. Okay, so welcome Survi, welcome Ritwik, और thank you so much. बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बातें दीदी जो आपका गाना है उसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है. अमित मिश्रा जी ने गाया है. अमित मिश्रा जी इज अ वेरी टैलेंटेड गिफ्टेड सिंगर और आपके ऊपर उनकी आवाज ऐसे लग रही है कि जैसे आप ही गा रहे हैं. मतलब बहुत ज्यादा इट्स ब्यूटीफुली मेड और पूरा एल्बम इज सो ब्यूटीफुल. तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी. सुरभि आपसे शुरू करते हैं. कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए फॉर शूटिंग फॉर बातें दीदी? See, for me, it was very special because A, I love Amit Mishra's voice. B, I love the song. Genuinely, बहुत अच्छा गाना है यार. और I am a big music lover, and the lyrics, the song is written so beautifully. He has sung it so nicely. Yeah. और पता है इस गाने में एक बहुत ही special चीज थी that most of us were friends on the set. Ritvik and I, we've never worked together, and हमें शुरू में मतलब we were skeptical के because we know each other so well, almost every day we are together, but we've never worked together, so there's a difference. तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद chemistry जो director चाहते, by the way directors were also our friends, तो जो आशीष को चाहिए वो निकलेगा या जो हम पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जब आपका कोई इतना अच्छा दोस्त होता है तो शायद तब भी आपको पोर्ट्रे करने में प्रॉब्लम होती है. बट नो, we were bang on, and I think self proclamation, we were bang on. Of course we were yaar. no, but you know what I'm saying, when you know somebody so well, तो हमें see chemistry में क्या था कि of course नोक झोंक दिखाना था और ऐसा दिखाना था that they are together, they are genuinely very good friends, but there is a very thin एक layering है उनके relationship में, अनहद and हीर के relationship में. अब मैं और ऋत्विक भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेयरिंग को पोर्ट्रे करने में प्रॉब्लम आ सकती थी क्योंकि जेन्युइनली हम भी जानते हैं एक दूसरे को, अनहद और हीर भी जानते हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. अफ्रेड कि कहीं जो नहीं हुआ. So yeah, that was one thing, and secondly, as I said, that most of us we were friends, so बहुत अच्छा माहौल था. that आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, when you see them grow, when you grow with them, and then you just do something together, it's a very nice feeling.
Sorry, I सुबह just have to mention this one comment. कोई एक बीच में लौंडा आके बोल रहा है कि भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है. I'm so sorry यार दोस्त. सॉरी. I am so sorry मेरे रांझा. हाँ. So thank you so much सुरभि. जो हमारे अनहद हैं, हमारे मॉडर्न डे रांझा, अब उनसे पूछते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. लाइक सुरभि सेड कि आप लोग सब सेट्स पे फ्रेंड्स थे, डायरेक्टर्स और पूरी टीम. So it was like a big family working. तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था ऋत्विक? It was a picnic, honestly. Uh-huh. It was a picnic. We just रोज सुबह और हमने 2 दिन शूट किया हमने. I think पूरे 2 दिन. तो 2 दिन. We would get up in the morning and we would just be like कि जैसे मैं सुरभि को फोन करता था, सुरभि मुझे फोन करती कि क्या कर रहा है, फ्री है कि नहीं है. तो आज क्या कर रहे हैं, आज शूट करने जा रहे हैं. तो बेसिकली जो हम घर पे करते हैं वो हमने सेट पे किया है. And she rightly said कि I think it was such a wonderful atmosphere because directors हमारे दोस्त थे, सुरभि और मैं इतने अच्छे दोस्त हैं. तो हमने बाकी यार दोस्तों को बुला लिया कि तुम सारे आ जाओ सेट पे. So it was a wonderful atmosphere to be honest. And I think वो आपको दिख ही जाएगा once you see the song and once you see the video. That level of comfort, that level of वो पागलपन जो इसके और मेरे बीच में है in general आपको दिख ही जाएगी. So yeah, it was marvelous यार. मजा आ गया मेरे को तो. सुरभि का सपना पूरा हो गया. आपको पता है सुरभि का सपना पूरा हो गया. इतने सालों में उसको पहली बार मेरे साथ काम करने का मौका मिल गया. कैसा लग रहा तुझे मेरी लाइन मुझे ही चेप के? हाँ, तेरा जीवन सुधार के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बता नहीं सकता. चलो. First thing when I got to know that I'm working with Ritwik, so I was like, oh my god, Ritwik तेरा मुंबई आना सफल हो गया. Finally बॉम्बे आया था. इससे पहले तो बोल सही के साथ काम कर लूं. वो टेंशन ना ले. तेरा सपना मैंने पूरा किया. मैं खुश हूँ. मैं अब खुशी जा सकता हूँ. Oh God. तो ये जिस तरह की आप लोगों की केमिस्ट्री है अभी जो नजर आ रही है वो सॉन्ग में भी थ्रू आउट. आई मीन ये जो नॉटीनेस है आप दोनों के बीच में, कुछ सम सीक्वेंसेस वर सो सीरियस. आप लोगों ने इतने ब्यूटीफुली इमोट किया है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि एक्चुअली आप हीर लग रही थी और आप एक्चुअली अनहद लग रहे थे, हमारे मॉडर्न डे हीर रांझा. तो कमेंडेबल, आई मीन ब्रावो. पर मुझे एक जिस कॉन्सेप्ट पे ये गाना बना है, तो वन साइडेड लव या अधूरा इश्क, तो आई वांटेड टू आस्क ऑफ योर ओपिनियन. सुरभि, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसे अधूरी रह जाती है तो वो ज्यादा खूबसूरत होती है ना, बजाय इसके कि वो चीज मंजिल तक पहुंचे. सो व्हाट इज योर टेक इन दिस एंटायर, हमारा बातें तेरी को ध्यान में रखते हुए? See, I've never been through any such relationship, so but I know what you're saying. See, I'll tell you what, the thing is that love is a beautiful feeling. Okay, अभी वो क्या है कि फिल्मों में हमने इतना सुन लिया है कि एक तरफा प्यार की ताकत and all of that, and in fact I've posted a picture and I wrote a caption. वो गुलजार साहब की लिखी हुई लाइनें थी. I don't remember them exactly, but it was like कि आपको प्यार तलाशने की जरूरत नहीं है, प्यार जिसको बर्बाद करना चाहता है उसको तलाश ही लेता है. क्या बात है. क्या बात है. So it's like, and only Gulzar Saab can write something like that. So of course it's such a beautiful and strong thing and feeling कि हम शायद इस चीज का पार कभी पा ही नहीं पाएंगे कि हम समझे कि हमने प्यार को समझ लिया, या इस फीलिंग, इसके इतने सारे पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं. So probably एक जन तो पूरा नहीं है इस चीज को समझने के लिए. I've heard like a lot of stories. I've seen friends who've been through the situation where it's a one-sided love story, or probably due to some reasons and circumstances वो अपने प्यार को नहीं पा सके. अब ये क्या है, of course खूबसूरती होती होगी, but दर्द बहुत है इसमें, जो मैंने उनके एक्सपीरियंसेस से जाना. Of course it's a painful thing, और प्यार क्या है कि सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे. प्यार आपके प्रोफेशन के साथ आपको हो सकता है, आपको प्यार किसी चीज के साथ हो सकता है, किसी फीलिंग या किसी भी प्यार कैन कम इन एनी फॉर्म इन योर लाइफ. बट ऑफ कोर्स जब वो मंजिल तक नहीं पहुंचता तो दुख होता है. बट द ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज, ऋत्विक, व्हाट आर यू डूइंग? ही इज प्लेइंग विद द filters. He is playing with the filters. ये क्या चल रहा है, तुझे पता ही नहीं है ये भी होता है. Oh my God. Yeah, and कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो, एक तरफा जब प्यार होता है,
एक तरफा प्यार मुझे तो कभी नहीं हुआ। देखो मेरी तरफ दो तरफा प्यार होता है हमेशा, हमारे तरफ दो तरफा हुआ, एक ही बार हुआ था के साथ मैंने काम किया है। कैन यू एक बार एक तरफा प्यार हुआ था जो कभी पूरा नहीं हुआ, मेरी हिस्ट्री टीचर के साथ, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। ये देखिए हमारी यूथ की इंस्पिरेशन को देखो। Yeah, so I'm saying that love, if it's passionate, the only good point here is that anything you do with passion is nice. It always helps you grow. True. Ritvik, beautifully summed by Survi. Anything to add? कुछ add करना चाहेंगे? फिल्टर के इससे बहुत यार इसने अपने चेहरे पे फिल्टर के अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिना फिल्टर के, हाँ, इस फिल्टर के बिना। इसने गुलजार साहब को मेंशन करने के बाद इतनी प्यारी बात बोल दी है, आई थिंक वो अपने आप में ही सम अप हो जाता है। और आई थिंक एक तरफा प्यार जो है ना वो मैं सही मायने थोड़ा सा टॉक्सिक भी है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि एक तरफा प्यार जो है एक इंसान को हमेशा से थोड़ा सा अकेला कर देता है, और मुझे ये कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैं इस बारे में आई डोंट रियली थिंक आई कैन से मच। बट हाँ, एक तरफा प्यार होता है और कईयों को होता है, और जन्मांतर तक होता रहता है। मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो एक ही इंसान से प्यार करते रह जाते हैं, और वो प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता। और आशिकों ने अक्सर कहा है कि जो प्यार मुकम्मल ना हो सके उसका नशा अपना ही होता है। तो वो नशा तो देखो हमने कभी किया नहीं, तो मुझे ज्यादा पता नहीं। बट अगर हमारे ऑडियंस में से इस वक्त जो हमें देख रहे हैं उनमें से किसी ने एक तरफा प्यार किया है भाई कोई सलमान है, वो कहता है भाई मैंने तो 4 तरफा किया है। 4 तरफा, क्या बात है। सलमान बढ़िया मेरी जा रहा, सलमान बहुत बढ़िया। अच्छा है, मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ इस महफिल में हमारे साथ। तो मैं बताना चाहूंगी ऋत्विक और सुरभि, आप दोनों जानते हैं अबाउट द शो दैट वी हैव ऑन कुकू, और आपका गाना बातें तेरी से उसको काफी प्यार मिल रहा है। गाने को तो मिल ही रहा है, शो को बहुत प्यार मिल रहा है। शो का टाइटल है हीर, और मैंने सुनना भी शुरू किया। मैंने कल बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर बिजी in promoting the song, and उसके बाद of course couple of shoots were there, but I had to, I know the whole story, but still आपको ऐसा लगता है कि आप शो सुनेंगे तो और मजा आएगा। Now since I'm a part of this project, then of course Kuku is actually doing some great shows, amazing shows, some amazing originals, और सब कुछ मतलब इस शो में बहुत सारी बेहतरीन वॉइसेस है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस शो। और जब मैं सुरभि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब मैं ये शो कर रही थी तो जो अनहद हैं, अनहद के लिए जो हीर का प्यार है, जैसा हमने शो में बताया है, तो आप लोग जो लोग हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि हीर गेट्स मैरिड टू समबडी एल्स, और अनहद अभी भी उनकी जिंदगी अटकी हुई है अनहद की। तो क्या ये जायज है कि आपका प्यार अप्रोच हमारे हमारे जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे, हाउ टू गो अबाउट दिस? I lost you in between. You did? हमारा नेटवर्क, मेरा नेटवर्क गया कि नहीं, आई थिंक आपका नेटवर्क। तो इन्होंने पूछा कि वो क्या आपके हिसाब से सुरभि सही है ऐसा प्यार जो आपके किसी और के हो जाने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा। इज द क्वेश्चन। कान खोल के सुन लिया करती है। मैं तेरा काम करूं यहाँ पे भी, अपना काम नहीं कर सकती? इसी के लिए तुझे बुलाया। बेसिकली मुझे और पल्लवी को बातें करनी है, तो ये हमें एंटरटेन कर, बीच में फिल्टर लगा ले। मेरे किसी का नेटवर्क चला गया तो क्वेश्चन ठीक है, तू इसका जवाब, तेरा बेसिक काम यही है। तू इसका जवाब दे, दूसरा फिल्टर मुझे पानी भी पिला दे, मैं नहीं हो तो अपने घर पे अभी। हाँ, सी पर्सनली मुझे ऐसा लगता, मुझे ही मेरा ओपिनियन है दैट यू हैव टू मूव ऑन इन एनी केस, बिकॉज नथिंग इज योर लाइफ, योर लाइफ इज योर लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप किसी एक चीज को इतनी तवज्जो देते हैं that you ignore everything else in your life is also not right. मेरे हिसाब से this is not the right thing to do, because चीजें आती रहेंगी, इंसान आते रहेंगे, आप just give your best to every relationship, every work, every job, but if it's not meant for you, you really can't stop living, you really can't stop being happy. Of course it hurts,
बुरा लगता है जब आपका कोई सपना पूरा नहीं होता, जब आपका कोई रिश्ता पूरा नहीं होता, जब कोई चीज टूट जाती है, बुरा लगता है. But my point is that you really can't stop living. You really can't just end your emotion and end your happiness with that particular thing. True. आप नाराज होते हैं, आप दुखी होते हैं, उस चीज को भी फील कीजिए, लेकिन उसके बाद उबर आइए, उसके बाद संभल जाइए और आगे बढ़िए. This is my personal opinion. Super, I think beautifully put, Survi. I think हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे मेरे एक सीनियर का एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बोली थी. उन्होंने कहा था कि इतना सारा प्यार है, जब कोई आपकी जिंदगी में आता है, आप उसको प्यार देते हैं, वो आपको सिखा कर जाता है, जब वो चला जाता है तब भी वो प्यार आपके अंदर रहता है. तो फिर किसी और को जिंदगी में आने देना चाहिए ताकि वो प्यार आप उसको दे सके. किसी और के हिस्से का प्यार किसी और को मिल सकता है, जायज है. मतलब what makes me very very sad and upset जब मैं ऐसी स्टोरी सुनती हूँ कि अगर किसी का प्यार नहीं पूरा हुआ तो that person sometimes try to hurt person. So you were never in love with that person. अगर प्यार आपको कभी भी किसी को दुख देना, उस पर्टिकुलर इंसान को दुख देना तो नहीं सिखा सकता. So I think you were never in love. आपको प्यार की कला, प्यार का हुनर आया ही नहीं अगर आप उसे दुखी देखना चाहते हैं. So I think that's an absolutely wrong definition of love. I completely agree with you. This is a very valid point. Thank you, Survi. Ritik, I have to ask you a question, similar question. लेकिन उससे पहले जिस तरह filters use कर रहे थे, मुझे लगा कि हम लोग वो कॉमिक साइड पहले उस पे बात कर लेते हैं. आई वांट टू नो, जिस तरह के प्रैंकस्टर आप हैं, क्या कुछ बिहाइंड द सीन गॉसिप दीजिए ना. आई थिंक बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनको जैसा एंड प्रोडक्ट तो सामने दिखता है, उनको पता है केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग है, बहुत सुंदर गाना बना है, बट कुछ बिहाइंड द सीन गॉसिप दीजिए ना हमें. क्या हुआ शूट के दौरान, कुछ ऐसा? यार ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती रहती है इसकी और मेरे साथ. हाँ. एक चीज जरूर हुई थी कि मतलब मैं शूट कर रहा था और मैं शूट के बीच में ब्रेक मिला तो मैं चला गया इसके पास, इसकी वैन में. तो एक छोटे से ब्रेक में तो मैंने देखा कि इसने वैन के अंदर एक स्टूडियो खोला हुआ है अपना खुद का. 4 फोटोग्राफर्स लगे हुए हैं, 5 वो आउटफिट्स वाले लगे हुए, जूते अलग लगे हुए. इसने पूरा अपना एक शोरूम खोल रखा था. मैंने ये क्या बकैती हो रही है यहाँ पे. तो हम अंदर काम कर रहे हैं और ये मेम साहब बाहर एक फोटो शूट करी. तो अब अगर आपको इसके बाद के कुछ फोटोज दिख भी रहे हैं तो वो उस दिन शूट किए गए जिस सेट पे थे. क्योंकि ऋत्विक का शूट चल रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको बहुत टाइम, अभी उस टाइम में या तो मैं फ्रस्ट्रेट होके इसकी जान खा सकती थी, आशीष की जान खा सकती थी. मुझे लगा पेशेंटली कैसे इस समय का सदुपयोग करे. मैं चुपचाप अपनी वैन में मेरा हम फ्रेंड की फोटो शूट करें. क्रिएटिविटी धनी. आई थिंक आई एग्री एंड obviously but as such I know आपका सवाल है कि ऐसा कुछ मस्ती वाला ऐसा कुछ हुआ. ऐसा तो हमारा कुछ ना कुछ होता ही रहता है. आप हमारा इंस्टाग्राम पे देख लो तो जो होता रहता है वो रेगुलर है. he keeps doing random thing, like random में कुछ भी करने लग जाएगा. बैठा हुआ है, बात कर रहे हैं, खड़ा होके आईना साफ करने लग जाएगा. उसके बाद मतलब मोस्ट रैंडम थिंग्स. क्यों करता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, कुछ भी कर देता है. So But that's good actually. वो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है. सारी सीरियस बातें ना करके अब आपको आई थिंक आपकी केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता है कि आपको तंग बहुत करते होंगे. हाँ सुरभि? यार अभी पर्सनालिटी इसकी अनोइंग है, होना तो बड़ी नेचुरल. Nah, he is cute. Okay. No, but he's my very very dear. मतलब पता नहीं कैसे बड़ा perfect combination है ये कि he can actually annoy me the most. लेकिन जब मुझे कोई बहुत ही serious बात करनी होती है या मुझे ऐसा लगता है that I need some unbiased opinion, तो भी मैं इससे पूछती हूँ. So yeah. Okay. So okay. Super. ऋतिक, मुझे मेरा अगला सवाल आपसे है कि मुझे हम लोग we were doing a show for Star Bharat and it was on stalking. तो ये जो नया प्यार होता है और उनको लगता है कि अगर मैं इसको चाहता हूँ या मैं इसको चाहती हूँ तो ये भी मुझे चाहे, ये भी मुझे वापस प्यार करे, हमारा प्यार मंजिल तक पहुंचे. और वो जब नहीं होता है तो जैसा कि सुरभि राइटली सेड, वो जुनून में बदल जाता है. So ऐसी जनता के लिए do you have something to say, कुछ एडवाइस देना चाहिए? I do. I have to tell you very very honestly. Stalking is uncool. It is
it is a big turn off. Yeah, And it's a I think crime. it's a turn off. It's a crime. A crime तो खैर, I mean, if it reaches beyond a point, then it becomes a crime. But apart from that, ऐसे कई सारे लोग हैं जो criminal, उसको आप crime नहीं कह सकते, but they will still madly and crazily follow someone and then constantly sort of reach out to them. And it's borderline harassment, very honestly. Yeah, It's borderline No, totally. and मुझे ऐसा लगता है it's a very basic thing to understand that if right now I am hungry, how can I expect you to also to be hungry? That अरे आपको भूख नहीं लगी और तुम्हें भूख नहीं? No, if I'm in love with a certain person, how can I expect the same feeling from the same person? अगर mutually कुछ होता है, आप दोनों एक दूसरे को eventually, gradually पसंद करते हैं, now that's different. But if the other person doesn't like you, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे उस मोड़ पे छोड़ देना चाहिए rather than forcing somebody, क्योंकि that also doesn't give you a satisfaction. आप किसी से जबरदस्ती अपने को प्यार करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप प्लीज मत करवाइए. It's not feeling that you don't belong here, but out of pressure और आप force कर रहे हैं, stalk कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, and all that wrong things you're doing to the person ताकि वो आपके साथ रहे. This is And not love. Not at all. It's not love. Plus, there's one thing that I want to add here, and I want to tell everyone who's listening to us right now. कि मैं आपको बताता हूँ, the most attractive thing in a human being, not a boy or a girl or a man or a woman, just the most attractive thing in a human being is the idea of how much they not just love but respect themselves. Yes. Oh, True, yes. true, very true. When you truly know your own worth, it's very attractive. It's very attractive, and you'll automatically find the right kind of people who will appreciate you for who you are. Because Absolutely. अगर आप ये stalking और ये जानबूझ के किसी के पीछे जाना और messages करना, you're actually stooping down to a level where आपको पता है कि सामने वाले को interest नहीं है. Everybody knows it. आपको पता है कि सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है या सामने वाला बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम करे जा रहे हैं. So you're actually not doing anything, but what you're doing is you're putting yourself down. Yes. Yeah, you're just ruining your own consciously, and I think that's the most non-attractive thing that exists. Correct. And so that's pretty much what I'd like to say. Now, beautifully put, Ritvik. I completely agree with you. Beautifully put. Now, जितने भी लोग हमें follow कर रहे हैं, I see a lot of questions also coming. आप लोगों की और भी questions हैं, तो अब we'll be taking your questions. अब आपके questions को answer करेंगे, तो कोई questions हैं तो please आप पूछें. सर भी एक question जो मैंने अभी ऋत्विक से बात करते हुए देखा था, वो ये है कि आप Big Boss में आ रही हैं कि नहीं? Okay, क्या ना बात तो कर रही मैं है? Big Boss में आ रही हूँ, ना मैं what was the other show, झलक दिखला जा कर रही हूँ, ना मैं I'm not basically doing any reality show, guys. I'm not. And Ritvik, any scoop on you? कुछ No. ऐसा आप? No, No? not at all. Okay. Any favorite part गाने का, कोई भी आपका favorite part कौन सा है, वो please share कीजिए ना. Ritvik, you first, please. पूरे गाने में आपका favorite part कौन सा है? I think see, first I'll be very honest with you. I loved playing a rock star. So I loved the bit when I was singing on stage, and it was a very wonderful feeling, is because जिस तरीके से आपने कहा, that's a huge compliment कि ऐसा लगता है कि गाना मैंने गाया है. So हालांकि मेरी इतनी अच्छी आवाज है नहीं जितनी अमित की है, और अमित has a wonderful voice, but that bit was, of course, that was most enjoyable. But if you ask me what my favorite bit was, I think it's all the bits where me and her are being ourselves. Like there's an entire sequence on the terrace जिसमें से जो लगा है, that was not planned. It was not, there was no scene, there were no dialogues. और अगर उसमें लाइनें होती तो आपको पता लगता है कि हम किस बात, मतलब कोई बात नहीं किस बात पे हम लड़ रहे हैं, कि इसने ऐसे बैठे चपेट मार दी, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हमारी, मतलब ऐसे. No, actually हमें किसी भी सीन का कोई ब्रीफ, मतलब ऑफ कोर्स हमें फील समझाई गई थी कि दिस इज गोना बी द फील ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉट और सीन, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, दिस वाज नॉट बीइंग टोल्ड. तो वो अगेन क्योंकि वी नो ईच अदर सो वेल, सो आई थिंक दैट्स व्हाई वो करने में बहुत आसानी. राइट. तो तिरुपति राजेश सिंह, उनका ये सवाल था कि आप दोनों का फेवरेट पार्ट. फेवरेट पार्ट गाने में कौन सा था, वो ही सही हो गया. पार्ट और सॉरी,
आप फिर से अटक गई थी मोहतरमा। Yeah. Are you back now, Surbhi? Is everything, yeah? Can you hear us fine? Yeah, we can hear you. Yeah, you were saying Okay, the next Okay. question. Right. So somebody asked us कि आपकी आपकी जो ब्यूटी है उसका क्या सीक्रेट है? What is your skincare routine, Surbhi? सुबह उठ के अपनी थूक लगा लेती है मुंह पे, बहुत सुंदर लगती है। ये धनिया का है। तेरे से अभी तेरा जवाब हो गया। अब my routine. अरे दुनिया I पागल हो रही है, ये रेटिनॉल सीरम वीरम कुछ नहीं, अपनी थूक की शीशी No, भर के no, रखती है रोज no, रात no, को, no. बहुत It's बढ़िया। not about. See, I'll tell you what. मेरे को genuinely a couple of years back, मैं सच में breakout से परेशान थी, and then I realized not every medicine is for every skin type. You really need to understand your skin type, and most of the time it's internal. I'm not kidding here. I'm not joking. You really need to follow the ancient ways because बहुत बार ऐसा, see, I have a pitta body, so if I eat or drink anything which has heaty effect, तो उससे breakouts हो जाते हैं. So please always understand and study Right. before just following and go for any product. Please don't do that. Ritvik, you also got an allergy, if you remember. कौन सी? That was because of PPD. Because of Correct, PPD. correct. There's So a please know your component that you skin get and know in, your body first. yeah. PPD is something that I'm allergic to. और हाँ, मतलब very honestly मेरा जितना भी, जैसे यार हम लड़कों का इतना ध्यान जाता नहीं है कि कौन सा क्या है नहीं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक छोटा सा माँ हर बार बताती रहती कि ये देख तेरा ज्यादा हो गया है, and I think I'm really grateful that I have friends in my life जो मेरे को बताते रहते कि तू ये लगा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बॉडी टाइप फिगर आउट कर। और जिस एंशिएंट तरीके की सुरभि बात कर रही है, हम लोग उस बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं। आई थिंक शी हैज अ लिटिल बिट मोर नॉलेज देन आई डू about the Vata, Pitta and Kapha, the 3 body types that there are. So yeah, just find your body type and just do what's needful. Yeah. Super. Ritik, Shruti said उनको पवित्र रिश्ता में आपका काम बहुत अच्छा लगा था. So आप ऐसा रिलेशनशिप वाला शो और कब करने वाले? यार कोई ऐसा सा सुंदर सा रिलेशनशिप वाला अगर कोई शो या कोई फिल्म या कोई ऐसा वेब शो कुछ भी आ जाए तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा, बट इतनी सुंदर कहानियां वापस दोबारा मिल नहीं रही। Millie Tripathi says that she loves you both. She doesn't love me. She loves you. So that's okay. We love you back. और Twinkle पूछ रही है सुरभि की, do you relate with Heer? I think I can say yes. Why? Because I loved a guy, and when जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस रिलेशनशिप का अंजाम होना चाहिए वो नहीं हुआ, then I moved on, and that's what I'm saying, that you should also do that thing, that you shouldn't stop with just one thing. Life बहुत सारे experiences लेने आपको बाकी हैं, कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए. Just feel whatever you are feeling at this very moment, and then just move on. True. Ritik, do you relate with Ranja? With Anhad? Do I relate with Ranja? I think I do. I think उसके प्यार करने का तरीका और मेरे प्यार करने का तरीका I think काफी सिमिलर है. और मतलब वो वैसा सही है कि अगर वो प्यार हो जाता तो प्यार हो जाता, मतलब इतना आसान नहीं होता है कि मतलब एक प्यार को आप बुला दो वैसा. तो I think I do relate to Ranja a lot. Anhad, Ranja. Anhad. Yeah. modern काजल पूछ रही है, सुरभि, do you think ये real life रांझा है ऋत्विक? हाँ. Sorry. हाँ, ऋत्विक रियल लाइफ रांझा है. हाँ, जल्लो को तो पता ही है. झल्लो ये आपका निकनेम है? ये सुरभि का Nobody calls only other than him. Under any circumstance in life, सिर्फ only me who can call her Jallo, that's it. And this is the name given by me. Super. Do you have a nickname? आपने निकनेम नहीं दिया? नहीं, धनिया is his universal name. Everybody calls him धनिया. धनिया. अरे धनजानी, so it's like थोड़ा बिगाड़ के जैसे नाम दोस्त बोल देते हैं. One question I forgot who's asking. Queen Zira says hi, and Shivani Tiwari says hi, and somebody sending you love from Tamil Nadu. Unknown found
somebody, and Sana Sheikh says hi, Kiran Niranjan says hi, Balaji says hi. Hi, everybody. Survi, one question to you. What is the importance of expressing love at the right time? I think it's very, very important. Not only just expressions in love, but in anything. Even if you are scared, just say that you are scared. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने तो शुरू से यही फॉलो किया है, क्योंकि कुछ भी प्रिटेंड करना शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है. तो if I'm sad, if I'm upset, if I'm angry, if I'm not feeling good, so because I think it comes out of self-love. If you love yourself, if you have self-respect and self-care, then of course you will express what you're feeling. So I think it's always an easier way. Say true to your feelings. तो वो मेरे लिए तो हमेशा वर्क करता है. If I'm not liking anything, I'm not liking anything. ऐसा थोड़ा घुमा फिरा. Of course there is a way to say things. It's, you know, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बम करके बॉम्ब फोड़ दो, बट हाँ एक तरीके से कहना, बट कह देना चाहिए. उसके बाद अगला इंसान जो कह रहा है वो भी सुन लेना चाहिए. ये नहीं कि अपना कह के और just expect the other person to give the reply that you were expecting. ऐसा नहीं है. अगला जो the other person is also saying what the person is feeling, so have respect for that. So rightly said, Survi, and I want to ask Ritvik, I want to ask you. There's a question also from Shobhit, and so the question is कि if somebody is moved on, जैसे दो लोग रिश्ते में हैं और अगर लड़के की शादी for instance हो जाती है किसी और से, तो क्या आप अभी भी उनके साथ दोस्ती निभाएंगे? ऋत्विक, what's your take on this? कि कैसे वो रिश्ता मेंटेन करेंगे, क्या दूरियां रहेंगी? You know, since you were in a relationship पहले. कोई भी प्यार का रिश्ता होता है ना, उसमें ना सिर्फ प्यार नहीं होता, उसमें भर के दोस्ती, you know, बहुत सारे और ऐसे रिश्ते वो आपका मिश्रण बनता है, और रिस्पेक्ट होती है, and there is a lot of emotional dependency. So I think कि कोई भी रिश्ता अगर just because वो romantically successful नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्यार ही खत्म कर दो. मतलब प्यार का रूप जरूरी नहीं है कि रोमांस ही हो. आप किसी के लिए दुआ मांगना, किसी के लिए प्रार्थना करना, या किसी के लिए अच्छा सोचना, बिना उन्हें जाने भी, या बिना उन्हें पता भी ना हो, और आप उनके लिए अपने मन से ये कोई दुआ मांग रहे, तो वो भी एक किस्म का प्यार है. इबादत भी अपने आप में एक प्यार है. तो आई थिंक चाहे लड़का या लड़की दोनों में से किसी की शादी हो जाए, तो आपको डेफिनेटली वो दोस्ती या वो प्यार फिर भी निभाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व में जो आप आज हैं, उसमें उस प्यार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप जो आज बने हैं, आप the person that you become today, a lot of people are responsible for that. So I don't think you can take that away from them. कि मतलब just because हम romantically successful नहीं हो पाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है. बिल्कुल भी नहीं. Absolutely not. सुंदर. For me, मुझे ऐसा लगता है कि depends upon the situation, कि आप कितने लंबे रिलेशनशिप के बाद अलग हुए हैं, आप किन टर्म्स पे अलग हुए हैं, and was it a good breakup, like on mutual grounds, or you used to fight a lot. So it's a very, very situational thing. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका one common answer तो नहीं हो सकता. But of course, जैसे कहा, मैं उससे completely agree करती हूँ. But if you feel that it's not good for your mental health to be in touch with that person, then it's absolutely fine to be not in touch as well. I agree, and beautifully put, Survi. Like he rightly said, बहुत सारे और रिश्ते होते हैं प्यार के अलावा, तो उसको भी किसी एक रिश्ते को पकड़ के भी आगे जाया जा सकता है, और अगर एक स्वीट नोट पे नहीं खत्म हुआ है तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं. अब पूर्वम का सवाल है, सुरभि में आप आंसर करें प्लीज. वो पूछ रहे हैं कि 2 साल से वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं. आपकी कोई एडवाइस उनके लिए? Engage, मतलब आप pursue some other hobby probably. Just आपको किसी और. See, I'll tell you what, it's all energies. It's all your passion towards something. तो अगर आप उस चीज को किसी और तरफ channelize कर देंगे, भूलना आसान नहीं होता है. I can imagine, but it cannot suck you in. It just cannot stop you from doing other good things. It can't just flow in that direction only and stop being happy and stop doing other things. Please don't do that to yourself, क्योंकि ये
इनजस्टिस है आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके टैलेंट के लिए. प्लीज डोंट डू दैट. अपने लिए जस्ट परस्यू योर अदर हॉबीज एंड जस्ट लव योरसेल्फ. ये व्हाटएवर मेंट टू हैपन विल हैपन. ये जो आपने लव योरसेल्फ कहा है, ये बहुत ही बड़ी बात कही है. देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2 साल से आप ब्रेकअप हो गया, आप मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है. देखो, अब आने से तो 2 साल हो गए, चलिए कि कोई ऐसा कल आपकी जिंदगी में आए और आपका जीवन धन्य हो जाए. अगर तो आपको 2 साल से ज्यादा लग सकते हैं. नहीं है, कुछ फिल्टर अलग है तो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है. मैं बस इतना कहूंगा कि अगर 2 साल से आप मूव ऑन नहीं कर पाए तो थोड़ा, जैसे हमारी सुरभि दीदी ने कहा है, आप प्यार अपने आप को दे. हाँ, goes with his personality. Yeah. फिल्टर लगा के रखेगा अभी. नहीं ना. अच्छा, हटा होता फिल्टर यार. वो मैं बोला ना, सही नहीं लग रहा है, नहीं पता चला मुझे. Ritvik, do you have a take on long distance relationship? Is that what you're asking? Long distance I know her network is right. Okay. Yeah. Am I back? Quality check relation. Sorry, we lost you. You were saying long distance relationship. Is that what you were saying? कुछ आपका कोई एडवाइस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ऋत्विक? सच कहूं तो नहीं चलता भाई. ये तो नहीं हो पाता. ये तो बड़ा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला हिसाब है मेरे जैसे इंसान के लिए. आई डोंट नो, शायद जिनके लिए होता होगा तो बहुत बढ़िया है. जो इतना जो कर पाते हैं वो बहुत ही बढ़िया. बट आई थिंक आई एम अ वेरी काइनेस्थेटिक पर्सन. लाइक आई नीड टू have my person around me, to be able to talk to them, to be in their energies, to be able to laugh and share and love at that point in time, and that physical presence is important. But कि ऐसे आप साल में एक बार मिल रहे हो और ना 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 ना, ये तो ना हो. I think same. ये तो ना हो पाएगा. I think मुझसे भी नहीं हो पाएगा. It's difficult. जो लोग करते हैं, दिल से करते हैं और अच्छे से चल रहा है, सैल्यूट है यार. मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी. Super, I think beautiful. कुछ लोग चाहते हैं कि आप उन्हें हाय बोले. ऋत्विक, do you see these names on your screen? Yes, we're saying hi. Raksha Kumawat is here. Hi Raksha, she's my co-actor from the last film. Hi Raksha. There is Rupsa, hi. Navneet, hello Navneet. Love from JK Corner, hello. Preet, Niharika says video call services. कौन हो तुम भाई? Navneet. Trupti has been saying काफी देर से कि please take my name. Trupti, we've been reading all your comments. Thank you so much. You're wonderful. So yeah, thank you everyone. Ashwik, my world, 555, my guys, thank you very, very much. Yeah. Any parting message को कुछ बोलना चाहेंगे? सुरभि, आप कुछ बताना चाहेंगे? I would say that love is beautiful, but it should only and only empower you and helps you grow. If it's not doing that, then it's not love. And also, love just cannot be always being happy. That, बहुत मैंने देखा है कि अगर लोग खुश नहीं है या हल्का सा झगड़ा हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि no, it's not working. It's you cannot be hungry or angry all the time in that typical love all the time. And जब कहा गया है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, it's not literally आग का दरिया है और डूब के जाना है. Probably the poet शायर इसी की बात कर रहे होंगे कि प्यार करना is not a cakewalk. Please give it time. You should be mature enough to understand if it's love. And just as I started with the same thing, I would end with the same thing, that it should only empower you. And also watch Baatein Teri, listen to Heat on Kuku FM. And Kuku FM के और भी बहुत सारे shows हैं, बहुत सारे अच्छे shows आने वाले हैं. So please just go to Kuku FM and entertain yourself. Thank you so much, Surbhi.
ऋत्विक, आप कुछ Yes, बोलना चाहेंगे? a few things are parting. A couple of people who I've been seeing their messages. Ranu from our fan club is here, so thank you so much for being here, Ranu. And there is some guy called Jayesh. He says he's a big fan. Hi, Jayu. And if there is any parting thing that I wanna say is कि मैं आपको genuinely एक बात बता रहा हूँ दोस्त कि अगर आपको अपने जीवन में मुकम्मल प्यार चाहिए, वो प्यार जो आपको it can make you the best version of yourself. It starts with being the best version of yourself, or not maybe the best, just being the true version of who you are. So always stick to who you truly are, no matter what. आपके कितने flaws, आपकी कितनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो भी है, सब कुछ एक तरफ वो हैं. उसको एक्सेप्ट करते हुए आप अगर आगे बढ़ोगे एंड खुद को जितना ज्यादा हम अक्सर प्यार बाहरी दुनिया की तरफ देते हैं, काम को दे देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को दे देते हैं, अपने रोमांटिक पार्टनर्स को दे देते हैं, जिन पे क्रश है उन्हें दे देते हैं. पलट के थोड़ा सा अगर वो उसका अगला हिस्सा भी प्यार अगर हमने अपने आप को दे दिया ना, तो वी वुड बी सो मच मोर बेटर एंड अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ ह्यूमंस इन आवर लाइव्स. सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड राइट नाउ said, please watch our song. It's Baatein Teri. It's out there on Kuku FM's channel. Please also listen to hear the audio show जिसके लिए ये गाना बनाया गया है अमित मिश्रा की आवाज में. Please watch it and please share with us आपको कैसा लगा. यारो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज जितना हो सकता है हमें प्यार दीजिए, क्योंकि बिना प्यार के हमें कुछ नहीं है. आपका प्यार हमें बहुत ज्यादा बढ़िया बनाता है, तो आप बस प्यार देते रहे हमें, ठीक है? Thank you so much, Ritwik, for doing this. Thank you, Survi, for taking out time. Thank you so much. और जैसा कि दोनों ने कहा, प्लीज जाके देखिए बातें तेरी, and it's trending. और धीर सुनिए खुकू पे, और हम होपफुली फिर से मिलेंगे. Thank you so much for doing this. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye.